Good morning to all of you. Students, today in this video we have done our chapter 2nd, The Drunken Stupor. Before starting our chapter, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places. I maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start our chapter The Drunken Stupor. बेटा अभी मैंने आपको इसमें पहले ही बता रखा है कि इसमें ईश्वरी और जो बिर है वो दोनों फ्रेंड्स हैं. जो ईश्वरी है वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा है और जो बिर नरेटर है वो एक पुअर क्लर्क का बेटा है. ठीक है, ईश्वरी जो है उसको बिर को नरेटर को अपने घर लेके जा रहा है और उसने झूठ बोल दिया है कि उसका जो फ्रेंड है बिर वो एक बहुत ही अमीर घर का मतलब बेटा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 32. I am no horse rider. Yes, as a kid I have ridden pack horses on several occasions. Here I found 2 horses all ready to carry us. I nearly fainted at the sight of the animals. I did manage to mount the horse but was trembling all over. Trying to put up a brave front, I followed my horse to slip behind Ishwari's horse. Realizing my predicament, Ishwari rode at an easy pace, else I would have returned home with broken bones. Ishwari's house was like a castle. वो कहता है कि ईश्वरी मुझे बोलता है कि चलो आओ हम हॉर्स राइड करें. जब हम घर पहुंच रहे थे वो कहता है कि मैं कभी भी जो है वो घर मतलब हॉर्स पे नहीं चढ़ा. बचपन में मैंने हॉर्स राइडिंग की थी और मैं जब हॉर्स देखे वहाँ पे मैं फेंट हो गया और मैं बेहोश होके गिर गया. और जब मैं घर आया और मैं कांप रहा था और जब मैं घर पहुंचा विद ब्रोकन बोन्स और अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ. और ईश्वरी का जो घर था वो बहुत ही बड़ा था, कैस्टल महल जैसा था. द एंट्रेंस वाज थ्रू एन इम्पोजिंग गेट दैट हैड सेंट्री वॉकिंग to and fro. There were innumerable servants. There was an elephant tethered on the grounds. Ishwari introduced me to his parents and relatives in the same exaggerated manner in which he had introduced me to Riyasat Ali and राम हरक. वो कहते हैं कि वैसे ही इंट्रोड्यूस किया ईश्वरी ने अपने पेरेंट्स को जैसे उसने अली, रियासत अली और राम हरक को किया था कि वो एक बहुत ही अमीर बंदा है, बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा है. और जैसे ही वो उनके घर में पहुंचा तो उसके घर में उसने देखा कि बहुत सारे जो हैं इनरेबल सर्वेंट्स आर देयर, कि बहुत सारे नौकर चाकर हैं उसके घर में. He told such tall tales that not just the servants but even family members started treating me with respect. Few gentlemen even started addressing me as sir. When I found myself alone with him, I asked Ishwari why he was spreading lies about me. This is the best strategy to be adopted with these donkeys, else they will not speak properly with you. वो कहता कि ये तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला है. जैसे वो कहता है कि मैंने झूठ इसलिए बोला है कि सारे तुम्हारी जो है वो इज़्ज़त करेंगे. वो जो नरेटर है बिर वो कहते हैं कि मुझे कई सर्वेंट्स ने सर भी बुलाना शुरू कर दिया था. तो ईश्वरी कहता है ईश्वरी इसलिए ये सब कुछ झूठ बोल रहा था. वो कह रहा है कि अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो किसी ने भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करना था. It was 10 a.m. and the day's light had only reached the summit of the mountains, but Ishwari's family believed in following old traditions, and so an early lunch was announced. We went to bath. I have always folded my own clothes, but here imitating Ishwari's ways, I left them lying about. I was feeling embarrassed to fold my own clothes myself. We went for the meals. While in the hostel,
We never gave a second thought when entering the mess wearing shoes. But here it was binding to remove the shoes and wash the feet before sitting down for meals. A servant was waiting with a pail of water. Ishwari extended his feet and the servant washed them. I followed Ishwari example. The servant washed my feet too. My principal seemed to have deserted me. बेटा इस पैराग्राफ में जो नरेटर है वो बोल रहा है कि 10 बजे का सुबह का टाइम था और जो समिट मीन्स टॉप, माउंटेन की टॉप पे जैसे ही लाइट आई, मतलब पहुंच रही थी, डे लाइट हो रही थी, ईश्वरी के घर पे जो ट्रेडिशंस थे वो फॉलो करते थे और उन्होंने लंच के लिए अनाउंस कर दिया था कि इतनी जल्दी, और हम लोगों को जल्दी से बात मतलब नहा के हम आ गए। और मैं हमेशा अपने कपड़े जो हैं वो खुद फोल्ड करता था, बट इमिटेटिंग ईश्वरीज़ वे, पर ईश्वरी को देख के मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मेरे जो कपड़े हैं वो मैं क्यों मतलब फ़ोल्ड करूं जब ईश्वरी नहीं करता। और हम जब मील्स के लिए जाते थे हॉस्टल में तो हम तो ऐसे ही शूज़ पहन के निकल जाते थे, बट ईश्वरी के घर में हमें जो अपने शूज़ हैं वो रिमूव करके उतार के जाना होता था। खाना खाने से पहले वहाँ पे क्या ट्रेडिशन था कि जो नौकर थे वो बैठे थे पानी की पेल, बहुत पानी की परात लेके, जिसमें वो हमारे पैर जो थे वो धोते थे और फिर हम जो थे खाना जो हम खाते थे। I was respected by one and all for being the scion of princely family and a disciple of Mahatma Gandhi. Every care was taken to ensure that there was not the slightest delay in serving me meals or laying the bed at the right time. I had become much more tender than Ishwari, or was compelled to become so. Ishwari might spread out his bed with his own hands, but how could his princely guest do the same? That would cause blot in his greatness. This is exactly what happened one day. Ishwari was not in the room. He had perhaps gone to discuss certain things with his mother. It was already 10 p.m. and my eyelids were dropping in sleep. But the bed was not laid. How could I spread it myself? I was the scion of a princely family. The servant came at around 11:30 p.m. He had been busy with other household work and had quite forgotten about laying my bed. He came hurrying when he realized his folly. I gave him such a scolding that he must have remembered it for life. When Ishwari heard me reprimanding the servant, he rushed to the room. इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि वो जो था नरेटर बिर, ठीक है, वो प्रिंसली फैमिली, स्केयन ऑफ अ प्रिंसली, स्केयन मीन्स अ यंग मेंबर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैमिली, वो एक बहुत अच्छे घर का बच्चा था, अमीर का बच्चा था और वो डिसिपल था महात्मा गांधी का। और वो कैसे अपना काम जो है वो खुद करता था, वो करता ही नहीं था, जो नौकर हैं वो उसका सारा काम जो है वो प्रॉपरली कर लेते थे, चाहे वो बेड पे लगाना, बेड बिछा देना, उसका बिस्तर बिछा देना, और वो ईश्वरी को भी टेंडर कर रहा था कि जैसे ईश्वरी कर रहा है कि वैसे ही मैं करूँगा। जब ईश्वरी ने कभी हाथ नहीं लगाया अपना बेड बिछाने के लिए तो मैं क्यों करूँ। एक दिन क्या हुआ कि उसकी ईश्वरी को उसकी मदर के साथ कुछ डिस्कस करना था, वो वहाँ चला गया और 10 बज गए थे, ठीक है, और नरेटर का बेड जो है वो अभी तक बिछाया नहीं गया था सर्वेंट्स के द्वारा, और उसकी जो आईलिड्स थी वह ड्रॉपिंग इन स्लीप, और जैसे हमारी आंखें भरी हुई होती है ना जब हमें बहुत नींद आ रही होती है, वैसे ही नरेटर को बहुत नींद आ रही थी और वो उसका बेड जो बिछा हुआ नहीं था क्योंकि जो उसका सर्वेंट था वो मे भी भूल गया था क्योंकि वो और हाउस होल्ड वर्क घर के और कामों में बिजी था। और जैसे ही उसको याद आया 11:30 के करीब तो वो जल्दी जल्दी से आया और उसने मतलब उसको लगा कि मैं भूल गया और मेरी गलती है, वो उसने उसका बेड जो है नरेटर का बिछाना शुरू किया और नरेटर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको स्कोल्डिंग मीन्स गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और जैसे ही नरेटर को गालियाँ निकालते हुए सुना जो ईश्वरी था वो भागा भागा आया रूम में। यू डिड राइट थिंग, दिस इज वे टू डील विद दीज इडियट्स, ही सेड। वो कहते हैं कि क्या ये तुमने ठीक किया, क्या यही तरीका है इन इडियट्स के साथ करने के लिए, ही सेड। अ सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड अनदर डे, ऐसा ही फिर हुआ। ईश्वरी हैड बीन इन्वाइटेड टू डिनर समवेयर, इट वॉज इवनिंग बट द लैम्प हैड नॉट येट बीन लाइटेड।
ऐसे ही हुआ कि अगले दिन वो फिर कहीं गए डिनर के लिए, वहाँ पे टेबल पे लैंप तो पड़ा था और माचिस भी पड़ी थी, बट उसको नौकरों ने चलाया नहीं था। तो जब कभी ईश्वरी ने नहीं चलाया तो नरेटर कहता कि मैं क्यों जलाऊं, राइट। द लैम्प वॉज ऑन द टेबल एंड द मैच बॉक्स वॉज बाय इट्स साइड. आई हैड नेवर सीन ईश्वरी लाइटनिंग द लैम्प विद हिज ओन हैंड्स, so how could the worthy guest do so? I was getting annoyed. The newspaper lay on the table and I wanted to read it. वो कहता है कि न्यूज़पेपर वहाँ पे पड़ा था और मैंने उसको पढ़ना था, बट जब लाइट ही नहीं है, लैम्प ही नहीं चला, तो मैं कैसे करूँगा. But the lamp threw no light. Riyasat Ali, the clerk, happened to pass by the room, and it is on him that I vented my anger. You people don't have the courtesy to even light the lamp in the guest room. I rebuked him. I can't understand why laziness is tolerated here. तो कहता है कि रियासत अली वहाँ से पास कर रहा था और मैंने उसके ऊपर अपना गुस्सा, वेंटेड मीन्स एक्सप्रेस्ड फीलिंग, स्पेशली एंगर स्ट्रांगली, कि उसको करते हुए गुस्सा दिखाते हुए कहा कि तुम लोगों को इतना नहीं पता कि गेस्ट रूम में लैंप भी जगाना है, पता नहीं क्यों तुम इतनी लेजीनेस को टॉलरेट कर रहे हो. The dressing down unnerved the unfortunate man and he lighted the lamp with trembling hands. One man, a happy-go-lucky kind of a person, often visited Ishwari's house. He respected me because I was Mahatma Gandhi's follower but hesitated to ask me question openly. Finding me alone one day, he came up to me with folded hands and said, "Sir, you are Mahatma Gandhi's follower, aren't you? People say that after we gain freedom, the zamindari land ownership system will be abolished." एक दिन क्या हुआ, उसने पहले तो उसने अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स मीन्स कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया. फिर एक दिन उसने जब उसको नरेटर को अकेले देखा तो वो हाथ जोड़ के उनके पास गया कि सर, आप महात्मा गांधी के फॉलोअर हो, बट आपको ये नहीं पता कि हमें फ्रीडम दी जा रही है, फ्रीडम देनी चाहिए, वी गेन फ्रीडम जमींदारी सिस्टम में, और ये जो सिस्टम है वो एबॉलिश्ड, ख़त्म हो रहा है, ऑफिशियली एंडेड किया जा रहा है. Pretending to be well informed, I said, "Where is the need for zamindars to remain? What do they do other than suck the blood out of the poor?" मैंने उसकी बात की तरफ देखते हुए कहा कि क्या ज़मींदार, अभी ज़मींदारी में बचा क्या है, ठीक है, वो जो अमीर लोग हैं वो तो गरीब लोगों का ब्लड जो है वो सक कर रहे हैं, खून जो है वो चूस रहे हैं. The man asked, "Sir, does that mean the land of the जमींदार्स will be taken away from them?" वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो जमींदार हैं उनसे उनकी लैंड ली जाएगी. Many will give away their lands willingly, but the lands of those who do not do so will have to cease. We are all ready for the day. Once we gain freedom, we will distribute our lands among the tenant farmers. वो कहता कि कई लोग तो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, कईयों पे कब्ज़ा, सीज्ड मीन कब्ज़ा किया जा रहा है, पर कई लोग जो है उनको फ्रीडम है कि वो अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें टीनेंट्स फार्मर्स को. दीज डेज द जमींदार्स हैव बिकम वेरी डिस्पोटिक. वो कहते हैं कि इस टाइम जो जमींदार हैं वो डिस्पोटिक हो रहे हैं. डिस्पोटिक मीन्स दोज हु यूज़ पावर इन अ क्रूअल वे वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड्स इन योर जरिस्टिक्शन. वो कहते हैं कि जब तुम अपने जरिस्टिक्शन हेयर मीन्स द पावर और राइट टू मेक लीगल डिसीजंस, जब हम लीगल डिसीजंस बनाते हैं, प्लीज़ अलॉट मी अ पीस एज वेल, आई विल सर्व यू वेल. वो कहते हैं कि मेरे लिए भी एक पीस जो टुकड़ा है लैंड का वो दे देना. वो कहता है ठीक है. वेल, आई हैव नॉट बीन अलॉटेड माई जरिस्टिक्शन एज ऑफ नाउ, बट वेन आई एम अलॉटेड वन, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई विल समन. वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट जैसे ही मुझे अलॉट हो जाएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा. आई विल टीच यू टू ड्राइव एंड एम्प्लॉय यू एज माई चॉफर, आई टोल्ड हिम. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना ड्राइवर बना लूँगा जब मेरे पास ये अथॉरिटी आ जाएगी. द हॉलीडेज केम टू एन एंड एंड वी रिटर्न टू प्रयाग. Quite a large number of villagers came to see of us. The happy-go-lucky person accompanied us till the railway station. I played my role to perfection and left a deep impression in everybody's mind. I wanted to offer present to everyone, but my pockets were empty.
कहता कि जैसे ही हॉलीडेज़ जो हैं वो केम टू एन एंड, ख़त्म हो रही थी और हमें वापस प्रयाग आना था। और बहुत सारे जो लोग हैं विलेजर्स के, वो हमें सी ऑफ करने के लिए आए और हम रेलवे स्टेशन पे उन्होंने हमें बाय बाय की। और वहाँ पे मेरा जो रोल ऑफ परफेक्शन था वो बहुत अच्छा था और मैंने एक डीप इम्प्रेशन सबके माइंड पे सेट कर दिया था और मैं सबको प्रेजेंट भी देना चाहता था, बट मेरी पॉकेट जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी। We already had the return tickets. The only thing that needed to be done was to board the train once it arrived. When the train arrived, it was bursting at the seams with passengers. People were returning after spending the Durga Puja vacations in their villages. There was not enough space in the second class coaches to accommodate even a sesame seed. The situation in the inter-class coaches was worse. This was the last train and we had to board it under any circumstance. वो कहता है कि जब हमने टिकट्स खरीदी हुई थी, हमारी रिटर्न टिकट्स थी, तो वो ये एक ओनली ट्रेन थी जिस पे हमें जाना था और यहाँ पे जो लोग थे वो वापस आ रहे थे अपनी दुर्गा पूजा की जो वेकेशंस थी, अपने विलेजेस में वापस आ रहे थे, उनकी वहाँ से वापस लौट रहे थे दुर्गा पूजा की वेकेशंस के बाद। और सेकंड क्लास कोच में भी हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमें बोर्ड करना पड़ा, बट हमें बोर्ड ही करना था, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। Somehow we managed to squeeze ourselves into a third class coach. Here too our wealth spoke and people made some space for us. वो कहते हैं कि हमने थर्ड क्लास कोच में जगह ली और यहाँ पे भी हमारी वेल्थ देख के, हमारी रिचनेस देख के लोगों ने हमें थोड़ी सी जगह दे दी। But I wasn't very happy traveling in that coach. We had come in great comfort but were returning in a shivered condition. There was not enough space to even shift position. वो कहता है कि पर मैं खुश नहीं था, हम आए इतनी अच्छी कोच में थे और जा रहे इतनी गंदी वाली जगह से, इतनी गंदी उसमें ट्रेन में, थर्ड क्लास में कोच में, कि जहाँ पे एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। वन मैन हु हैड अ ह्यूज बंडल टाइड टू हिज बैक वॉज गोइंग टू कोलकाता। वो कोलकाता जा रहा था। ही कुड फाइंड नो स्पेस टू पुट डाउन हिज बंडल एंड दिस वॉज कॉजिंग हिम मच डिस्कम्फर्ट। और उसके पास जगह नहीं थी कहीं पे भी कुछ रखने के लिए और उसके पास इतना बड़ा बंडल था। फीलिंग अनकम्फर्टेबल, the man would make his way to the door every now and then for a whiff of fresh air. I was sitting by the door. During his struggles to the door, the man's bundle always brushed against my face. I did not like this at all. Besides, when the rustic came and stood in front of me, he blocked the breeze. I found that very stifling. I suffered this agony in silence for some time but could not take it any longer. In a sudden fit of rage, I caught hold of the man, pushed him aside and slapped him hard. वो कहता है कि वो जो बंदा था वो मेरे को डिस्कम्फर्ट जो कर रहा था और वो उसके जो बंडल्स थे वो मेरे फेस पे बार बार जो थे वो ब्रश्ड कर रहे थे मेरे फेस को और मुझे सांस लेने में, स्टिफलिंग मीन्स मुझे बहुत गर्मी, वेरी हॉट एंड सफोकेटिंग हो रहा था। और मैंने एक दो बार तो उसको देखा बट मैं अपनी चुप्पी को रख नहीं पाया और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको पकड़ा और ज़ोर से उसको एक थप्पड़ लगा दिया। वाई आर यू हिटिंग मी बाबूजी? उसने बोला कि तुम मुझे क्यों हिट कर रहे हो? वी हैव आल्सो पेड द फेयर, हमने भी किराया दिया है। ही सेड रोलिंग हिज आइज एट मी, उसने आंखें दिखाते हुए मुझे कहा। आई रोज एंड स्लैप्ड हिम अगेन, मैंने उसको एक फिर से चांटा लगा दिया। देयर वॉज इन स्टॉर्म इन द कोच एंड अ हेल ऑफ इंसल्ट्स केम हर्लिंग एट मी फ्रॉम एवरी साइड। और तूफ़ान आ गया उस कोच में, सब सारे के सारे मुझे इंसल्ट करने लग पड़े और बुरा भला जो है वो बोलने लग पड़े। इफ़ यू आर सो टेंडर, वाई डिडंट यू बोर्ड द फर्स्ट क्लास कोच? इफ़ ही इज़ वेल्दी, he had better display his wealth in his own home. Had he hit me, I would have shown him his place. वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम जाके अपनी फर्स्ट क्लास कोच में जाओ, यहाँ पे आने की तुम्हें क्या ज़रूरत है?
What wrong did the poor fellow commit? There is no space in the coach even to breathe. The poor man only went up to the door to catch a whiff of fresh air. And he has been slapped for that. कि क्या बात है, क्या रॉन्ग है कि अगर एक पुअर फेलो है, उसको गर्मी लग रही है, वो हवा लेने के लिए, ताज़ी ताज़ी हवा लेने के लिए डोर पे आ रहा है, तो क्या तुम उसके लिए उसको थप्पड़ लगा दोगे? डू पीपल लूज देयर ह्यूमैनिटी कम्प्लीटली आफ्टर बिकमिंग रिच? वो कहते हैं कि क्या जो ये लोग हैं अमीर बन के अपनी ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं? द सीन हैड ग्रेटली एम्ब्रेस्ड ईश्वरी। ये जो सीन था उस ईश्वरी को बहुत शर्म आ रही थी। ही स्नैप्ड आउट एट मी इन इंग्लिश। वो कहता है कि उसने मुझे इंग्लिश में ही एक स्नैप दे दी। वट एन इडियट यू आर बिर। वो कहता है कि तुम क्या इडियट हो। आई फेल्ट एज दो आई वॉज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम माई स्टेट ऑफ ड्रंकन स्टॉपर। तो जो बिर था उसको धीरे धीरे जब उसने बोला ईश्वरी ने, तब उसको याद आया कि जैसे शराबी जो है ना नशे में कुछ भी कर देता है, ऐसे अमीरी के नशे में मैंने भी कुछ कर दिया। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ ड्रंकन स्टॉपर एंड दिस इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद।